Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Administration, and under this chapter, we were discussing about the municipal corporation, and we have discussed how the children were playing in the street, and then the street light was broken by children, and after that they were very much puzzled how to replace this street light. The street light belongs to whom? Such questions were arising in the minds of the children. So in order to get answers to their questions, they went to the house of Yasmin Khala, because Yasmin Khala was working in the municipal corporation as told by mother of Rehana, and they were told by mother of Rehana that Yasmin Khala must be knowing about all these things, ki these street lights belong to whom, and if it needs to be replaced, then how it is done. Everything must be known to Yasmin Khala, है ना? That is why the children went to the house of Yasmin Khala, and then Yasmin Khala told them about the municipal corporation, which is responsible for all functions, all type of work in the city, like healthcare, education, then to stop the spread of the disease, then garbage collection, the function of street lighting. Everything is done by this municipal corporation. And Yasmin Khala also told them that in the bigger cities there is municipal corporation, and in the smaller cities there is municipal council. And the city about which we are talking, Yasmin Khala, is in the city of Pune, and in the Pune is a bigger city. That is why there is a municipal corporation. And then we have seen that the children were very much curious about the functioning of the municipal corporation. Who takes decision in a municipal corporation? Like if a park is to be constructed in the city, then who is going to take the decision? This was the question of the children from Yasmin Khala, and they also wanted to know that Yasmin Khala, as Yasmin Khala was working in the municipal corporation, so was she taking all these decisions? But then Yasmin Khala told them that no, she was working in the accounts department, and she has nothing to do with the decision making function of the municipal corporation. Who takes decision in the municipal corporation? Yasmin Khala told them that the ward councillor takes decision in a municipal corporation. And who is this ward councillor? Ward councillor is the elected member. He is first of all, what happens that the whole city is divided into smaller areas, and these smaller areas are known as ward, and from each ward we see that one councillor gets elected. Okay, so and these ward councillors are responsible for taking decisions in the municipal corporation. And how these ward councillor take decision? How do they work? They work through committees. There are different committees for different purposes in a municipal corporation. For different purposes, different committees are there. And who are the members of the committees? The ward councillors. They are the member of the committees. Committees like there may be garbage collection committee, there may be street lighting committee. Okay, तो ये जो सिटी कमिटीज़ होती हैं उनके मेंबर वार्ड काउंसलर्स होते हैं, और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन। और इनके काम को हम कमिटी में क्यों डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है, इट हेल्प्स to take decisions in an efficient manner. Ward councillors are able to work efficiently through committees, क्योंकि committees क्या होती है, smaller body होती है, और it is related to only single work, है ना। तो उससे क्या होता है कि काम की जो efficiency होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो now we will see कि ये decision तो ले लिया गया है ना। अब क्या होता है, आफ्टर टेकिंग डिसीजन व्हाट इज डन, द आफ्टर टेकिंग डिसीजन द डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। तो देयर आर टू लेवल्स ऑफ वर्क, और एट द फर्स्ट लेवल डिसीजंस आर टेकन and then these decisions are implemented. So you will have to understand it in a very logical manner, then you will retain this knowledge, है ना। अगर हम लॉजिकल मैनर में किसी भी चीज़ को समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहती है। अदरवाइज अगर हम उसको सोचेंगे कि रोट लर्निंग से हम उसको याद कर लेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा दिन नहीं रहती है। सो इट इज़ माई एडवाइस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, सो व्हाट आर वी सीइंग, जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे फंक्शन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स डिसीजन, है ना। And who is responsible for taking decisions? The ward councillors, है ना। The ward councillors take decisions. And how do they work? These ward councillors work through committees. इनके अलग अलग कमिटीज होते हैं, लाइक गार्बेज कलेक्शन और डिजीज से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, डिफरेंट अलग अलग कमिटीज होती हैं। एंड इस कमिटी में कौन मेंबर होते हैं, यही वार्ड काउंसलर्स मेंबर होते हैं, और वो उसी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। लाइक इफ द कमिटी इज गार्बेज कलेक्शन कमिटी, देन दैट कमिटी विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, अब हम सेकेंड लेवल पे आ रहे हैं जहां पर कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कि हम उस काम को करना, है ना। हमने डिसीजन ले लिया, बट ओनली बाय टेकिंग डिसीजन द वर्क इज नॉट डन। एक्चुअली उस वर्क को करना पड़ता है ना। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज implementation of the decisions। जो डिसीजन लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज डिसीजन। वार्ड काउंसलर्स तो डिसीजन ले रहे हैं, है ना। अब इस डिसीजन जो लिया जा रहा है उसको जो इम्प्लीमेंट करना है वो कौन करेगा। That will be done by the commissioner, municipal commissioner, and the administrative staff. Okay, so this is municipal commissioner and administrative एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूनिसिपल कमिश्नर, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये कौन होते हैं? दीज आर अपॉइंटेड, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब ये जिनको हम कह रहे हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, दिस म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो गवर्नमेंट उनके अपॉइंटमेंट करती है। इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, मेरिट होता है। दे कम्पीट द एग्जाम्स एंड दे बिकम द म्यूनिसिपल कमिश्नर, है ना। और इसके अलावा उनकी साथ बहुत बड़ी स्टाफ होती है जिसको हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के
कंट्रोल में होती है, उसके साथ काम करने के लिए ये एक वर्कफोर्स उसको दिया जाता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करें, और ये स्टाफ, दीज स्टाफ्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. And in order to do the work efficiently, what is done that the work of the city is divided into different departments. Okay, what we are saying कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है और उस काम को करने के लिए पूरी सिटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक वाटर डिपार्टमेंट, garbage collection department, then there can be a department to look after the gardens, then there can be a department to look after roads. तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट में डिवीजन हो रहा है वर्क का, वो किस लेवल पे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने डिसीजन लेने में क्या हुआ, वार्ड काउंसलर्स थे और उसके लिए कमिटीज बनी थी, डिफरेंट कमिटीज बन गई, हर कमिटी में वार्ड काउंसलर उसके मेंबर है और वो उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं कि गार्बेज के कलेक्शन के लिए क्या करना है, कैसे करना, क्या करना है. ठीक है, डिसीजन वो ले रहे हैं. लाइक रोड के बारे में, अगर किसी रोड की रिपेयरिंग करनी है या कोई नया रोड बनाना है तो उसके डिसीजन जो है वो रोड से रिलेटेड जो कमिटी है वो ले रही है. लेकिन अब उसका जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है तो फिर से हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेशन का वर्क है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर डिपार्टमेंट जो होता है बस वो वही काम करती है जो उसका काम है. लाइक अगर वाटर डिपार्टमेंट है तो दैट इज रिलेटेड विथ वाटर ओनली. जो भी काम है एक्चुअल करने वाला वो वाटर से रिलेटेड काम जो भी वो वाटर डिपार्टमेंट करेगा. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर डिपार्टमेंट. गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट which is a part of municipal corporation that is responsible for all kind of garbage collection in the city, है ना. तो इस तरह से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके काम को किया जाता है. एक्चुअली जो जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं. और ऐसा ही एक डिपार्टमेंट था सैनिटेशन का डिपार्टमेंट. ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वन ऑफ द डिपार्टमेंट वाज सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड यास्मीन खाला वाज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफ द दिस सैनिटेशन डिपार्टमेंट. सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में वो काम करती थी. ठीक है, तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है. उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं. डिपार्टमेंट में कौन होते हैं, डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं और वो दोज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना. तो इस तरह से ये दो चीजें होती. अब एक और चीज है, वन मोर थिंग इज देयर एंड दैट इज अबाउट द बजट, है ना. कि जैसे कोई भी डिसीजन ले लिया, वार्ड काउंसलर्स जो थे वो कमिटीज के थ्रू, अपनी कमिटीज उनकी अलग अलग बनी हुई थी और उन्होंने डिसीजन ले लिया, है ना. अब क्या होगा कि कोई भी काम करने के लिए अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि देयर शुड बी अ पार्क इन द सिटी, है ना. तो अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे पार्क बनाएंगे. पार्क बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए. विदाउट मनी नो वर्क कैन बी डन, है ना. तो ये अब हमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको जो भी उसने डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, दीज वार्ड काउंसलर्स, द इलेक्टेड मेंबर्स, दे मेक अ बजट, है ना. ये एक बजट तैयार करते हैं. सो द वार्ड काउंसलर्स दे मीट टुगेदर एंड दे prepare a budget for the whole city. Okay, वो एक बजट बनाते हैं. और अगर हम बजट कह रहे हैं तो इसका क्या मीन होता है, बजट का मतलब होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ये होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में बजट एक 1 मंथ के लिए भी बन सकता है, 1 ईयर के लिए भी बन सकता है, इट डिपेंड्स. बट वी आर टॉकिंग अबाउट the municipal corporation and in this context the budget is prepared for
1 ईयर। ओके, तो बजट जो होती है, बजट में क्या देखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कहां से हमें पैसे आने हैं। ओके, इनकम क्या होता है, हमारा सोर्स ऑफ मनी, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग मनी। और एक्सपेंडिचर, ये इनकम होता है, और एक्सपेंडिचर हम कहाँ खर्च करना है। अगर पार्क बनाना है तो उसमें खर्च होगा, अगर ये रोड्स बनाने हैं या उसकी रिपेयरिंग करनी है तो उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो ये जो इश्यूज होते हैं जिन पे खर्च किया जाता है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को हम बजट कहते हैं। ये बजट कौन बनाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट, की एक साल में हमें कितना इनकम होगा और एक साल में हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द वार्ड काउंसिलर्स। ओके, और ये सारे वार्ड काउंसलर्स जो है वो इसको उनकी मीटिंग होती है और उसमें वो ये बजट बनाते हैं, और जो बजट बनती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो पैसे लेते हैं और उसको खर्च करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बजट के बारे में हमें जानना। और इसके अलावा जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम a smaller area of the town city, and this smaller area is known as ward. तो जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, एक्चुअली दे आर द representative of the people, है ना। ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, किन लोगों के, जो लोग उस वार्ड में रहते हैं, जिन्होंने उनको अपना वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने जो वार्ड होते हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके वो डिमांड्स को रखते हैं, है ना, कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। सपोज किसी जो भी वार्ड है वहाँ पर किसी वार्ड में क्या है कि पावर की बहुत ही इरेगुलर सप्लाई है। तो अब जो वहाँ का वार्ड काउंसलर है, दैट वार्ड जो वार्ड काउंसलर है, ही विल रिप्रेजेंट, ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द ऑफ हिज वार्ड। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो काउंसिल की मीटिंग में रखेगा कि हमारे वार्ड में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सही से काम करवाने की जरूरत है, आखिर क्या बात है, उसको वो रखेगा। देन अगर किसी वार्ड में सपोज करो कि रोड्स की कंडीशन बहुत खराब है, तो जो वार्ड काउंसलर है वो इस मैटर को रखेगा कि हमारे वार्ड में रोड की रिपेयरिंग होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हर वार्ड काउंसलर जो है वो अपने अपने वार्ड की प्रॉब्लम्स को रखता है, और उसकी कोशिश यही होती है कि वो ऐसे डिसीजंस लिवा सके, सबके साथ मिलकर डिसीजन लेना है। ही कैन नॉट टेक डिसीजंस अलोन, है ना। तो वो कन्विंस कराता है अदर काउंसलर्स को कि किस तरह के डिसीजन लेने की जरूरत है। तो इस तरह से ये जो होता है वो फंक्शनिंग होता है। नाउ वी विल सी वन अदर इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक, एंड दैट इज जो हम कह रहे हैं कि इनकम इसकी जो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, फ्रॉम वेयर इट गेट्स मनी, इसको इनकम कहाँ से आता है। एक्सपेंडिचर तो हम देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, सीवर हैं, एवरीथिंग इज डन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक्सपेंडिचर के तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे इश्यूज हैं जिसपे एक्सपेंडिचर होना है, बट इनकम कहाँ से होगा, है ना। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इनकम होगा तभी देन ओनली देयर कैन बी एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ही नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कैसे होगा। तो इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी कि फ्रॉम वेयर दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स मनी। व्हाट वी फाइंड कि द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस मनी in different ways, like first of all you must know the meaning of tax. Whenever we are talking about budget, we must know the meaning of tax.
सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स जो है वो एक सम ऑफ मनी होता है, एंड दिस सम ऑफ मनी इज पेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट. एंड व्हाई पीपल आर पेइंग दिस मनी टू द गवर्नमेंट? फॉर द सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन सर्विसेज के लिए हमें गवर्नमेंट को हम कुछ मनी पे करते हैं, है ना, और इसी को हम टैक्स कहते हैं. तो what is tax? A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. Okay, तो इस तरह से जो टैक्स होता है that is the most important source of income for municipal corporation. Municipal corporation लोगों से कई तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लेती है. और ये टैक्स हम गवर्नमेंट को क्यों देते हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से बहुत सारी फैसिलिटीज सर्विसेज को लेते हैं. लाइक अगर हम रोड्स को यूज करते हैं तो दैट रोड इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना. तो उस रोड को बनाने में, मेंटेन करने में गवर्नमेंट को बहुत खर्चे होते हैं. तो ये पैसे गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? वी विल गिव मनी टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, है ना. इसी तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम देखते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज लगते हैं. डॉक्टर की फीस अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो उनको बहुत खर्च होते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत नॉमिनल फीस लगती है. तो और सारी हमें फैसिलिटीज भी वहाँ पे अवेलेबल होती है. तो ये क्यों, कैसे होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही चीप होते हैं जहाँ पे फीस अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन है, एज वी डिस्कस्ड, हम लोग बीपीएल जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था लास्ट चैप्टर में. तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए तो एजुकेशन फ्री होता है ना. अप टू 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री है. तो ये जो, और अगर हम बीपीएल नहीं भी हैं तो भी हम अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारी फीस बहुत कम लगती है. फिर अगर जैसे गार्बेज ही है हमारे, सपोज रोड पे पड़ी रहे, कोई उसको कलेक्शन नहीं करे तो हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी? हम लोग तो बिल्कुल सिक हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, है ना. तो इस तरह से ये बहुत सारे काम करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लिए बहुत सारे हमें सर्विसेज देती है. तो ये सर्विसेज बिना पैसे के हमें नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू अस, है ना. तो ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और एक्चुअली वी आर गिविंग दिस मनी टू द गवर्नमेंट. तो हमारा ही पैसा जो है वो किसके पास जाता है? दिस मनी गोज टू गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट देन स्पेंड्स this money in order to provide services to the people. ये सर्विसेज किसको मिल रही है? दिस सर्विसेज आर अवेल्ड बाय पीपल. एंड ये टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स इज ऑल्सो गिवन बाय पीपल. तो ये एक तरह का साइकिल है. हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उस टैक्स के पैसे को यूज करके सर्विस प्रोवाइड किया. वी यूज दैट सर्विस एंड वी आर अगेन पेइंग दिस टैक्स बिकॉज वी आर यूजिंग द सर्विस, है ना. तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है वो एक्चुअली हमारा ही पैसा होता है जो हम पे खर्च किया जाता है. नाउ वी विल सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. बहुत तरह के टैक्स होते हैं. लाइक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? जिन लोगों के पास अपना ओन होम है, दे आर हैविंग देयर ओन होम, तो उस तरह की जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. ओके, सो वी विल सी टाइप्स ऑफ टैक्सेस. First is property tax. प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उस पे हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को. ओके, उसी तरह से वाटर टैक्स भी होते हैं, है ना. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, हम वाटर यूज कर रहे हैं,
अगर हम म्यूनिसिपैलिटी के वाटर को यूज करते हैं तो हमें वाटर टैक्स भी देना पड़ता है। लाइक हम कई सारे वी हैव आवर ओन बोरिंग्स है ना, बोरवेल किया हुआ है, तो वो दैट इज आवर प्राइवेट बोरवेल, तो उसके लिए हमें टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी की जो वाटर सप्लाई है उससे हम अगर वाटर ले रहे हैं तो फिर हमें गवर्नमेंट को वाटर टैक्स भी देना होता है ना। इसी तरह से और भी टैक्सेस होते हैं जो कि हमें देना पड़ता है गवर्नमेंट को। In the similar way, if someone is doing any business, someone is selling anything, then उसको सेल्स टैक्स भी देना होता है ना। जो भी सामान उसके यहाँ से बिक्री होती है उस जितने अमाउंट की सेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेल्स टैक्स भी देना होता है ना। And not only this, the government has, the people has also pay entertainment tax. Then people also have to pay income tax. Income, whatever we are earning, जो salaried class होती है, जिनको सैलरी मिलती है, उसको भी, उनको भी अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ taxes, and these are known as these are the most important source of इनकम फॉर द गवर्नमेंट, है ना। और जहां पर हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, वाटर टैक्स मिलता है और एंटरटेनमेंट टैक्स मिलता है। ओके, यहाँ जिस हम सेल टैक्स की बात कर रहे हैं और इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, दिस सेल टैक्स गोज टू स्टेट गवर्नमेंट और इनकम टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसको यही टैक्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अदर टैक्सेस आर आल्सो देयर, लाइक एजुकेशन टैक्स भी होता है ना। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिलेटेड विद दीज टैक्सेस ओनली। ओके, तो इसके बाद नाउ वी विल सी some other important issues, and now we see that children are very much curious about the work of the Yasmin Khala. They are very curious about the work of the municipal corporation. They are asking so many questions from Yasmin Khala. Oh, Yasmin Khala is very happy with all these questions because after getting retired, she was not शी वॉज लैकिंग समथिंग, है ना। होते हैं ना, हम बहुत दिनों से कोई काम कर रहे होते, जॉब कर रहे हैं, अचानक से हमें रिटायरमेंट मिल गई। उसके बाद क्या होता है, हमारी मेमोरी में आती है बहुत सारी चीजें जो हमने पीछे देखा किया, है ना। तो उसी तरह से जब ये बच्चे पूछ रहे हैं यास्मीन खाला से उनके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्क को, फंक्शन को, तो उनको बहुत सी इज फीलिंग वेरी हैप्पी in sharing all these things with the children, because mostly क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं वो तो कोई भी इस तरह की बातें उनसे नहीं पूछते हैं, है ना। तो इनको जब यास्मीन खाला से जब बच्चे ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, सी इज फीलिंग वेरी हैप्पी। और न सिर्फ इतना, उन्होंने तो बच्चों के लिए क्या बनाया है, कबाब भी बनाया। सी हैज़ प्रिपेयर्ड कबाब फॉर चिल्ड्रेन ऑल्सो। और जो बच्चे हैं वो बहुत तेजी से खा भी रहे हैं और दे आर लिसनिंग टू द स्टोरीज वॉट एवर यास्मीन खाला इज टेलिंग देम अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो है हम क्या देखते हैं कि जहांगीर जो है
वो उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से कि गार्बेज जो कलेक्शन करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो गार्बेज कहाँ जाता है, आफ्टर कलेक्टिंग वेयर डज दैट गार्बेज गो। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना, बिकॉज गार्बेज का बहुत अच्छे से वो होना, जिसको कहेंगे कि गार्बेज कलेक्शन के बाद उसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। अगर कोई बायोडिग्रेडेबल है तो उसको अलग करना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको अलग करना, है ना। तो इस तरह से उसकी सॉर्टिंग होती है। तो ये अब क्वेश्चन जहांगीर का है कि गार्बेज कहाँ जाती है, और दूसरी चीज कि अगर कोई गार्बेज को नहीं उठाया जाए सड़कों से तो फिर क्या कंडीशन होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यास्मीन खाला जो है शी विल टेल story of their own locality to the children. So in the next class we will discuss that story which is told by Yasmin Khala about their own locality.